ایک 16 سال کا بچہ کالج جانے کے لیے اپنی بائک پر سوار ہوتا ہے۔ دروازے تک اس کو چھوڑنے اس کی ماں آتی ہے۔ گھر سے تقریباً 10 منٹ کی مسافت پر ایک تیز رفتار ویگن اس کے ساتھ ٹکراتی ہے اور اس کا ایک شدید برا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ موقع واردات کے اوپر ایمبولینس کو بلایا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ ملک پاکستان ہے۔ ایمبولینس موقع پر 15 منٹ بعد پہنچتی ہے اور اس لڑکے کو جلدی میں ایک ہاسپٹل ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ اس کو قریبی گورنمنٹ ہاسپٹل میں لے کر جایا جاتا ہے، لیکن وہاں عجائب کا ایک حیرت کدا اس کا منتظر تھا۔ اول تو یہ کہ یہاں کوئی بیڈ خالی نہیں، اور دوسری بات یہ کہ اگر بیڈ مل بھی جائے تو 100 مریضوں پر 10 ڈاکٹرز ہیں، وہ کس مریض کو دیکھیں گے اور کس مریض کو نہیں۔ اس لڑکے کے مڈل کلاس غریب ماں باپ گورنمنٹ ہاسپٹل کی یہ حالت دیکھ کر اس کو ایک قریبی پرائیویٹ کلینک میں لے جاتے ہیں، لیکن یہ کیا یہ کوئی پرائیویٹ کلینک ہے یا پھر سونار کی دکان؟ اس پرائیویٹ کلینک میں اس بچے کا علاج تو کیا جاتا ہے، لیکن جب بل اس باپ کے سامنے آتا ہے تو گویا وہ حیرت سے اس کو کچھ دیر تکتا رہتا ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ ایسے حالات پاکستان کے ہر پرائیویٹ ہاسپٹل اور ہر پرائیویٹ کلینک کے ہیں۔ ایسے حالات میں غریب ماں باپ اور مڈل کلاس لوگ آخر جائیں تو جائیں کہاں؟ پاکستان میں میڈیکل صورتحال کی اتنی بری حالت آخر کیوں ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ان ساری باتوں کے بارے میں بات کریں گے، اور اینڈ پر ہم پاکستان کے میڈیکل نظام میں خامیوں کے اوپر سلیوشنز کی بات کریں گے ہماری آج کی اس برانڈ نیو ڈاکومنٹری میں۔ یہ ہے ہمارا پیارا ملک پاکستان۔ اس ملک کی تباہی کے اوپر ہم ہمیشہ گورنمنٹ اور بیوروکریٹس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی تباہی میں ایک عام آدمی کا کردار بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ گورنمنٹ اور بیوروکریٹس کا ہے۔ پاکستان جیسے تباہ حال ملک میں بے تحاشا مافیا پھلتے پھولتے ہیں، جن میں ہمارے پاس شوگر مافیا، آٹا مافیا اور بہت سارے دیگر مافیا شامل ہیں، لیکن ان میں ایک ایسا مافیا ہے جو سب سے زیادہ جان لیوا اور خطرناک ہے۔ یہ مافیا انسانی جانوں کو خریدتا اور بیچتا ہے۔ اس مافیا کا نام ہے پاکستان میڈیکل سسٹم مافیا۔ یہ مافیا پاکستان کی گلی کونوں میں بیٹھے ہوئے ان پڑھ ڈاکٹروں سے شروع ہوتا ہے اور انتہا درجے کے پڑھے لکھے اور ترقی یافتہ ڈاکٹرز جو کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں لاکھوں کی فیسیں لیتے ہیں ان پر ختم ہوتا ہے۔ ایک شخص اپنی بیوی کو کریٹیکل حالت میں لے کر ہاسپٹل میں داخل ہوتا ہے۔ درد سے کراہتی ہوئی بیوی کو ایک سٹریچر پہ لٹایا جاتا ہے اور ICU میں شفٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے شوہر کو ریسیپشن پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا علاج تب شروع کیا جائے گا جب آپ 1 لاکھ روپیہ جمع کروائیں گے۔ اس کا شوہر اصرار کرتا ہے کہ آپ علاج تو شروع کریں، میں پیسوں کا انتظام کر رہا ہوں، لیکن اس کا علاج شروع نہیں کیا جاتا۔ جب تک وہ بیوی کا شوہر پیسے جمع کرتا بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی بیوی ایک ابدی نیند سو چکی تھی۔ کیا ہاسپٹل مافیا نے انسانی جان کی قیمت صرف 1 لاکھ ہی لگائی؟ بالکل اسی طرح کا ایک کیس رپورٹ کیا کہ ایک شخص اپنے باپ کی ڈیڈ باڈی حاصل کرنے ہاسپٹل گیا۔ وہاں پر ان کو جو بل دکھایا گیا اس میں وہ میڈیسن، وہ ٹیسٹ اور ایک پرائیویٹ کمرے کا بل بھی شامل تھا جو انہوں نے کبھی استعمال نہیں کیے۔ یہ آپ کا بل ہے، آپ اور 3 لاکھ روپے کاؤنٹر پہ جمع کر کے باڈی لے جائیے۔ جب اس لڑکے نے اپنے باپ کے اس بل کے اوپر سوال کیا تو ہاسپٹل مافیا نے اس کو یہ کہا کہ اگر تم نے زیادہ سوال جواب کیے تو ہم تمہارے باپ کی باڈی پر قبضہ کر لیں گے اور اس کو کاٹ کے اس کے اعضاء بیچ دیں گے یا پھر میڈیکل کالجز میں پڑھانے کے لیے استعمال کریں گے۔ رپورٹس کے مطابق 80% پاکستانی افورڈیبل ہیلتھ کو افورڈ نہیں کر سکتے، اس تک ان کا ایکسیس نہیں ہے، لیکن یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز ہر سال بلینز کماتے ہیں۔ کسی بھی ملک میں عوام کو 3 بیسک چیزیں ملنی ہی چاہیے۔
जिसमें नंबर 1 है एजुकेशन, नंबर 2 है हेल्थ और नंबर 3 है जस्टिस यानी कि इंसाफ। एजुकेशन की हालत तो पाकिस्तान में बदतरीन है, इसकी बात हमने अपनी एजुकेशन ट्रैप वाली वीडियो में की थी। पाकिस्तान अपनी टोटल जीडीपी का 1 से 2% एजुकेशन को देता है और 1 से 2% ही मेडिकल यानी कि हेल्थ को देता है। 25 करोड़ आबादी और सिर्फ 1 से 2% हिस्सा जीडीपी का उनकी सेहत के लिए मुख्तस किया गया है। पाकिस्तान का ये बजट पता नहीं किस अक्लमंद मिनिस्टर ने बनाया है। पाकिस्तान में गरीब अवाम को रिलीफ देने के लिए 2018 में इमरान खान की हुकूमत ने एक सेहत कार्ड लॉन्च किया था। नो डाउट कि इस सेहत कार्ड से बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया और गरीब अवाम को बहुत रिलीफ मिला, लेकिन क्या आपको इस सेहत कार्ड की डार्क रियलिटीज़ मालूम है? जब कोई मरीज़ किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में सेहत कार्ड पर इलाज करवाने जाता तो वहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल की पूरी कोशिश होती कि वो मरीज़ सेहत कार्ड पर इलाज ना करवाएं। अक्सर मरीज़ को ये बहाना लगाया जाता कि इस किस्म का इलाज तो हमारे हॉस्पिटल में होता ही नहीं है, और दूसरी तरफ अगर कोई इलाज होता भी हो तो सेहत कार्ड वाले मरीज़ को इतनी लंबी वेटिंग लाइन में डाल दिया जाता कि शायद वो उसी मर्ज से मर जाए। सेम यही हालात गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के भी थे। इतनी लंबी वेटिंग लाइन होती थी कि लोग वेट करते करते या तो फिर उन्हीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके लाखों की फीस देते थे या फिर उस दर्द से जूझते और कराहते हुए मर जाते थे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के हालात तो इतने बुरे हैं कि लैब रिपोर्ट्स इतनी लापरवाही से लिखी जाती हैं कि बिल्कुल गलत रिजल्ट आते हैं, और ये गलत रिजल्ट किसी मरीज के लिए वबाले जान भी बन सकते हैं। आप यहाँ पर देखें, एक रिपोर्ट पाकिस्तान के गवर्नमेंट हॉस्पिटल की है और दूसरी रिपोर्ट उसी मरीज की उसी वक्त एक प्राइवेट लैब की है, और इन दोनों के रिजल्ट में फ़र्क आपको वाज़िया नज़र आ रहा है। अगर हम प्राइवेट डॉक्टर्स और प्राइवेट क्लिनिक्स की बात करें तो आपको अनपढ़ जाहिल डॉक्टर्स पाकिस्तान के हर गली कूचे में मिलेंगे। ये बगैर डिग्री के डॉक्टर्स होते हैं जिनको मेरा ख्याल है कि हम डॉक्टर्स तो नहीं कह सकते, ये शायद कोई कसाई होते हैं जो कि अवाम के साथ, अवाम की सेहत और जान के साथ खेलते हैं। इस वीडियो में आप ये देखें कि इस डॉक्टर को तो ABC भी शायद नहीं आती और ये मरीज लेटा इससे कोई ड्रिप लगवा। ये डॉक्टर्स हमारी सेहत के लिए जहर कातिल हैं, लेकिन फिर भी हमारी गरीब अवाम इनके पास जाती रहती है और अपनी सेहत बर्बाद करती रहती है। आपने ये जुमला तो सुना होगा कि राती चंगी पली रोटी खादी सी फिर सुबह उठा ही नहीं। उनमें 70% हालात और केसेस इन डॉक्टर्स की वजह से ही होते हैं। अब हमारी अवाम इन डॉक्टर्स के पास जाके अपनी सेहत बर्बाद कर रही है, लेकिन ये पब्लिक करे तो करे क्या? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ नहीं और रश की एक लंबी लाइन होती है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पैसे इतने कि जैसे कोई सुनार की दुकान। अब प्राइवेट डॉक्टर्स जो कि पढ़े लिखे होते हैं वो भी अवाम को हर तरीके से लूटना चाहते हैं। सबसे पहला तरीका जिससे ये प्राइवेट पढ़े लिखे डिग्री याफ्ता डॉक्टर्स हमारी अवाम को लूटते हैं वो है कमीशन बेस्ड मेडिसिन बेचना। लेट्स से कि एक ही तरह की मेडिसिन 4 कंपनीज बनाती हैं। मेडिसिन A जो कि 8 रुपए की है, मेडिसिन B जो कि 10 रुपए की है, मेडिसिन C जो कि 15 रुपए की है और मेडिसिन D जो कि 25 रुपए की है। अब अगर डॉक्टर की कमीशन मेडिसिन D वाली कंपनी के साथ तय हुई है तो वो हर मरीज को मेडिसिन D ही लिख के देगा। हालांकि मार्केट में 8 रुपए वाली मेडिसिन B मौजूद है जो कि सेम काम करती है, लेकिन डॉक्टर अपनी कमीशन के लिए गरीब अवाम को महंगी दवाई रेफर करेगा। अब यहाँ पर मैं ये बात समझता हूँ कि अगर डॉक्टर्स और ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस तरह साठ गांठ ना करें तो फिर कंपनीज का बिजनेस चलेगा कैसे? लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, अगर हर कोई बिजनेस के बारे में ही सोचेगा तो फिर इंसानियत कहाँ गई? क्या इंसानों को लावारिस मरने दिया जाए या फिर उनको महंगी दवाइयाँ बेचकर सिर्फ लूटा जाए? क्या चीज़ मजहब और इंसानियत के करीब है? इसके ऊपर डॉक्टर्स और कंपनीज को मेरा ख्याल है कि सोचना चाहिए। ये तो आपने नोटिस किया ही होगा कि आप मेडिकल स्टोर पर जाकर एक मशहूर मेडिसिन मांगे, लेकिन आपको ये जवाब दिया जाए कि ये मेडिसिन मार्केट से शॉर्ट है।
ये शॉर्ट होती कैसे है? इसके पीछे बेसिकली 2 रीजंस हैं। या तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मसला है, क्योंकि पाकिस्तान में जब मेडिसिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम हो जाती है तो फिर मार्केट से मेडिसिन शॉर्ट हो जाती है। लेकिन अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मसला ना हो और तब भी दवाई मार्केट से शॉर्ट हो, तो याद रखिएगा कि मेडिकल माफिया आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका है। जिस तरह आपने नोटिस किया होगा कि जब डेंगू फीवर फैलने वाला होता है या उसका सीजन आने वाला होता है, तो ये मेडिकल स्टोर वाले करते क्या हैं कि बहुत क्वांटिटी में पैनाडोल खरीद लेते हैं और उसको स्टोर कर देते हैं और मार्केट में उसकी शॉर्टेज हो जाती है। जब मार्केट में उसकी डिमांड बहुत हाई हो जाती है तो ये इसको अपनी मर्जी के पैसों पे बेच सकते हैं और अंधा प्रॉफिट कमा सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान का मेडिकल माफिया वबाएं फैलने पर भी अपनी औकात दिखाता रहता है। प्रॉफिट ज़रूरी है, इंसान मरे तो क्या। इस तरह के हज़ारों करोड़ों मसले हमारे इस मेडिकल सिस्टम में हैं, लेकिन हमारा काम मसलों को सिर्फ हाईलाइट करना है, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना हमारा प्राइमरी मकसद है। अब हम देखेंगे कि ये जितने मसले हमने बयान किए, इनका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहला स्टेप जो लिया जा सकता है वो है अवाम को एजुकेट करना, अवाम को ये बताना कि उनकी हेल्थ बहुत ज़रूरी है। आप व्यूअर से मेरी ये दरख्वास्त है कि किसी भी फार्मेसी पर जाकर अपनी मेडिसिन ना लिया करें, एक मुस्तनद डॉक्टर से चेक करवाया करें, या फिर किसी प्राइवेट क्लिनिक जहाँ पर अनपढ़ जाहिल डॉक्टर बैठे हो उनसे भी मेडिसिन ना लिया करें। आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं? ज़िंदगी कायनात के दिए हुए प्रीशियस तरीन तोहफों में से एक तोहफा है, तो याद रखें कि आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 10, 20, 100 या 1000 रुपए के पीछे बिकनी नहीं चाहिए। आपने सुना होगा कि जान है तो जहान है, इसलिए अपनी सेहत के ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और अपने एजुकेशन को इंक्रीज करना है। सेल्फ मेडिकेशन एक बहुत बड़ा मसला है। हमारे मरीज अपने आप को आता डॉक्टर समझने लग जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये दवाई डॉक्टर ने फलां बंदे को फलां मर्ज में रिकमेंड की थी तो मैं भी ये खा सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं। इससे आपकी किडनी फेलियर और लीवर के ऊपर डिस्ट्रेस पड़ता है और इसके चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने आप को एजुकेट करें। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी यही अपील है कि आप न्यूज़ चैनल में डॉक्यूमेंट्रीज़ और एडवर्टीज़मेंट लगाएं और वो एडवर्टीज़मेंट और डॉक्यूमेंट्रीज़ आवाम को एजुकेट करें कि अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि कुछ मरीज़ डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको कहते हैं, देखो यार मुझे बुखार है, नज़ला है और खांसी है, तुम ऐसा करो कि मुझे वो वाला टीका लगा दो। ओ भाई, आप डॉक्टर नहीं हो, वो डॉक्टर है, उसने बताना है कि आपका इलाज क्या होगा, आपने नहीं बताना कि मुझे टीका लगा दो। इसलिए ही मैं कहता हूँ कि अवाम अपने आप को एजुकेट करे और अच्छे डॉक्टरों पर भरोसा करे। दूसरी मेरी अपील फिर गवर्नमेंट से है कि हमारे हॉस्पिटल्स, खसूसन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चेक एंड बैलेंस रखा जाए। अक्सर ये देखने में आया है कि पर्ची बनाने वाले 2 लोगों की पर्ची बनाने के बाद चाय पीने चले जाते हैं। इनको इतनी चाय की तलब आखिर क्यों है, इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। फिर जो MBBS डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं वो भी आते हैं और मरीजों का एक सरसरी सा जायजा लेकर चले जाते हैं। मैं जानता हूँ कि मरीज ज़्यादा हैं और डॉक्टर्स कम हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर्स को भी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। मेरी गवर्नमेंट से इस बात में ये अपील है कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखें कि कौन सा बंदा कितने वक्त काम पे आ रहा है और कैसा काम कर रहा है, और इसमें डॉक्टर्स को और फिर मैनेजमेंट स्टाफ को अवार्ड्स भी दिए जाए कि जौन से हॉस्पिटल में मैनेजमेंट स्टाफ ने अच्छे से काम किया है वहाँ अवार्ड दिए जाए। इससे कंपटीशन बढ़ेगा और अवाम को ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि हमारे फिर मेडिकल वर्कर्स ज़्यादा दिलजोई से काम करेंगे। अगर हम हेल्थ केयर को प्रॉपर ठीक करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देखना चाहते हैं, तो हमें अपनी GDP का मैक्सिमम हिस्सा एजुकेशन, हेल्थ और जस्टिस को देना पड़ेगा। इसके बगैर कोई चारा या कोई रास्ता नहीं। हमें कम से कम 5 से 10% तो अपनी हेल्थ को देना ही चाहिए। दूसरी बात यह कि गवर्नमेंट हमारे हॉस्पिटल्स के साथ कोलैबोरेट करे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ, और जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ वो कोलैबोरेट करेंगे तो उनके प्राइजेस और दाम खुद ब खुद ही नीचे आएंगे। मेडिकल माफिया के ऊपर ये वीडियो
کوئی ایکسپوز ویڈیو نہیں تھی یا کسی کو تانا زنی کا شکار نہیں بنایا گیا۔ یہ عوام میں اویئرنیس اور گورنمنٹ کو ہوش دلانے کی ہماری ایک چھوٹی سی کوشش تھی۔ اگر آپ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو سراہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے حق کے لیے آوازیں بلند کرتے رہیں تو ہماری اس محفل کو اور مشن کو جوائن کریں۔ نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے، اس کو کلک کریں اور ہماری باقی آئی اوپننگ ڈاکومنٹریز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔